so much for being a part of an historic celebration tonight. Now, I know everybody is excited for what is to come, but while we wait, we invite you to experience a visual journey. Ladies and gentlemen, welcome to the biggest Indian diaspora event in Australia, here at Marvel Stadium in Melbourne. Thank you for your patience. We are about to commence the formal proceedings of this event. Minister of India, Honourable Shri Narendra Modi ji. Please welcome the Prime Minister of Australia, Honourable Anthony Albanese.
Yes, we are the home of the MCG and the Boxing Day Test. But much more importantly than that, we are home to more Indian Australians than anywhere else in the country. Melbourne has hosted some big visits. This one is next level. Nearly 30,000 people filling a stadium. This is a statement about the strength and energy of India. A statement about the diversity of our community and a statement about the economic future that Victoria and India are building together. Welcome your students, your businesses, your families, your ideas. In Victoria, the Indian community is not just accepted, they are part of who we are. India is not just a country we trade with, it is a country we trust. And let me say this to Victoria's great, strong Indian community who are here tonight. You are welcome here. Your children never have to choose between being proudly Indian and proudly Victorian, because in this state you can be both. And here in Victoria, and Prime Minister Albanese, thank you for your leadership, which has strengthened Australia's relationship with the world's biggest democracy. It is now my pleasure to welcome my friend, the Prime Minister of Australia, the Honourable Anthony Albanese. Well, thank you so much, Jacinta. And I begin by acknowledging the traditional owners of the land on which we meet, and I pay my respect to elders, past, present and emerging. Prime Minister Modi, my friend, welcome to marvellous Melbourne. As a true friend of Australia and a very dear friend of mine, it is an honour to host you this evening. And I also welcome each and every one of you out there in the stands. Over the years, this stadium has seen some loud and legendary events. It's just as palpable and present tonight among this incredible beaming experience. I learned there something very simple and clear that I have communicated to my fellow Australians. If you want to understand India, get on a train. Wherever I went, I ate delicious food and I was told wonderful stories. And I was welcomed into the homes of people I met, into the richness and depth of Indian culture. On this stage, all these years later, it is such a privilege to have the chance to extend our own Australian hospitality to Prime Minister Modi. Because this evening, we all come together to celebrate the bond that unites our two peoples. Two great democracies, two great multicultural societies, the mutual respect that we share, the strength of our friendship. I would like to begin acknowledging the traditional owners of the land on which we meet, and I pay
My respects to their elders, past, present, and emerging. Vanakkam, Melbourne. Namaskar, mates. कैसे हैं आप? केम छो? ये शो हाउसफुल है, ब्लॉकबस्टर है। मैं अपना भाषण शुरू करूं इससे पहले विक्टोरिया के प्रीमियम और इस बार मेलबर्न वालों के साथ फ्लैट व्हाइट कॉफी पीता हूं। हम सभी को वेलकम किया है, वो और भी अमेजिंग है। मेलबर्न ने एक तरह से मैदान मार लिया है। साथियों, मैं मेरे मित्र, भारत के मित्र प्राइम मिनिस्टर एंथनी अल्बनीजी का भी बहुत आभारी हूं। और मेलबर्न जहां आइकॉनिक स्टेडियम है, हम दोनों साथ रहे। और साथियों, हम सभी ने देखा है, प्राइम मिनिस्टर अल्बनीजी जब बोलते हैं तो भारतीयों के दिल और दिमाग में छा जाते हैं। सिडनी में भी आपने धूम मचाई थी और यहां भी आप छा गए। मैं को 28 साल इंतजार नहीं करना पड़ेगा। पिछले 12 वर्षों में मैं तीसरी बार यहां आया हूं। यानी इस बार हैट्रिक लगी है। ये दिखाता है कि भारत और ऑस्ट्रेलिया के रिश्ते किस ऊंचाई पर है। और जानते हैं इसमें सबसे बड़ी भूमिका किसकी है? मोदी 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 की नहीं, इसमें आप सभी साथियों की भूमिका है। इंडियन डायस्पोरा की भूमिका है। साथियों, कहते हैं कि मेलबर्न शहर एक दिन में ही 4 सीजन के दर्शन कराते हैं। लेकिन भारतीय समुदाय ने अपने कल्चरल कलर से इसको और वाइब्रेंट बना दिया।
मेलबर्न में और आसपास काफी ऐसे स्थान हैं, ऐसे मार्केट्स हैं जो भारतीयता के रंग से भरे हैं। साथियों, आप में से कई साथी फर्स्ट टाइम ऑस्ट्रेलिया आए और कईयों का जन्म भी यही हुआ। पीढ़ियां बदल गई, लेकिन भीतर की भारतीयता हमेशा हमेशा जिंदा रही। यहां कई सारे साथी ऐसे होंगे जिनके घर में कम से कम 2 टाइम जोन चलते हैं। यहां बच्चे स्कूल से घर ऑस्ट्रेलियन टाइम के हिसाब से आते हैं, लेकिन भारत में दादा दादी, नाना नानी वीडियो कॉल पर इंतजार कर रहे होते हैं। यहां वीकेंड होता है तो भारत में किसी शादी की लाइव स्ट्रीमिंग चल रही होती है। यानी दूरी हजारों किलोमीटर की है, लेकिन डेली रूटीन आज भी भारत से जुड़ा हुआ है। गर्व है। साथियों, हम भारतीय ऐसे ही हैं जैसे दूध में चीनी मिल जाती है, उसे और मीठा कर देती है। वैसे ही हम भारतीय दुनिया में अपने प्रेम का रंग घोलते रहते हैं। घर में दूध ऑस्ट्रेलिया वाला आता है, लेकिन चाय भारत वाली बनती है। चाय का नाम तो पहले ही याद आएगा ना। अरे चाय वाला दाल सब्जियां ऑस्ट्रेलिया की हैं, लेकिन उनमें तड़का देसी मसालों का ही लगता है। साथियों, आपने सुना होगा भजन क्लबिंग का नया ट्रेंड चल रहा है। इसको हमारी जैन जी ड्राइव कर रही है। और यहां ऑस्ट्रेलिया में भी मैंने सुना है कि आपका वीकेंड आस्था और आध्यात्म से भरा रहता है। कहीं किसी के घर भगवान सत्यनारायण की कथा, कहीं गुरुद्वारे में अरदास, कहीं बच्चों द्वारा भांगड़ा या भारतनाट्यम की प्रस्तुति, कहीं कोई क्रिकेट टूर्नामेंट चल रहा होता है। और अब तो इंडियन फिल्म फेस्टिवल भी यहां आ गया है।
कुछ दिन बाद ही मेलबर्न में इंडियन फिल्म फेस्टिवल शुरू होने वाला है। साथियों, आपने भी देखा है, भारत ने मून के साउथ पोल पर चंद्रयान लैंड कराया। इसलिए साथियों, भारत अब स्पेस में अपना गगनयान भेजने की तैयारी कर रहा है। इसलिए हम भारत में नमो भारत रैपिड रेल और वंदे भारत जैसे सेमी हाई स्पीड नेटवर्क को तेजी से बढ़ा रहे हैं। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान डेमो तो देख ही लिया होगा। धमाके आतंकियों के अड्डों पर हो रहे थे और गूंज पूरी दुनिया में सुनाई दे रही है। इसलिए आज जीप से लेकर शिप तक मैन्युफैक्चरिंग का भारत में एक नया इकोसिस्टम डेवलप किया जा रहा है। साथियों, भारत के बड़े सपनों, बड़ी एस्पिरेशंस की नींव है भारत का नागरिक, वी द पीपल, और इन सपनों को एनर्जी दे रहा है। पीपल फर्स्ट, यानी नागरिक देवो भव का मंत्र, ये आज के भारत की गवर्नेंस का मूल मंत्र बन गया है। वादा, कुछ समय पहले हमने हमारी प्रवासी कम्युनिटी के बच्चों के लिए और ऑस्ट्रेलिया की सफलता है। साथियों, आज के इस कार्यक्रम के लिए प्राइम मिनिस्टर अल्बनीजी और आप सभी साथियों को मेरा एक बार फिर बहुत बहुत धन्यवाद। मेरे साथ पूरी ताकत से बोलिए, भारत माता की।